وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج ضلع اسماعیل خان کا دورہ کریں گے۔ جنوبی خیبر پختونخوا خصوصاً ڈی آئی خان ڈویژن کے لیے متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ بلوچستان کے علاقے کاہان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ، 1 افسر اور 4 جوان شہید۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پشپا کمال ڈاہل کو نیپال کا وزیر اعظم بننے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ علاقائی پارٹنر کے طور پر پاکستان اور نیپال کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں منتخب وزیر اعظم کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون کی مزید مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ ٹیکس دہندگان کی شرح میں اضافے کے لیے عوام میں آگاہی ضروری ہے۔ قوانین پر عمل درآمد کر کے ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس چوری کرنا سب سے بڑی بدعنوانی ہے۔ کرپشن کے خاتمے سے ہی ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا ٹیکس آگاہی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب۔ بلوچستان کے علاقے کاہان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ، 1 افسر اور 4 جوان شہید۔ شہداء میں کیپٹن فہد، لانس نائک امتیاز، سپاہی اصغر، سپاہی مہران اور سپاہی شمون شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کا عزم۔ پی ٹی آئی نے 4 سالہ دور میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ عمران خان نے ملک کی ترقی کو روک کر ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ حکومت کو ملک کی مفاد میں مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ عمران خان سازشیں کرنے کی بجائے ملک کی خدمت کریں۔ سیاسی مسائل کا حل سڑکوں اور چوک چوراہوں پر نہیں، پارلیمانی مشاورت میں ہے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سیاسی یکجہتی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی، قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ہلکی برف باری۔ اسکردو -12، کالام، مستور -8، قلات، گوپس اور ہنزا میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ۔ کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اردو اور پنجابی شاعری کے ماہ منیر نیازی کی 16ویں برسی، مداحوں کا خراج عقیدت۔ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کی بھی برسی، اہل ذوق کے دلوں میں آج بھی زندہ۔ شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی۔ طالبان کی جانب سے افغانستان میں غیر سرکاری تنظیموں میں خواتین پر کام کی پابندی، بین الاقوامی امدادی اداروں کا اپنے پروگرام معطل کرنے کا اعلان۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی، سیف دی چلڈرن، نارویجن ریفیوجی کونسل اور کیئر انٹرنیشنل نے پروگرام بند کر دیے۔ ماسکو ہمارے لیے سال کے اختتام کو تاریک اور مشکل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہمیں کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوکرین پر حملے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ مہلک یورپی تنازع کو جنم دیا۔ اس وقت تک لڑیں گے جب تک روسی فوج کو علاقے سے مکمل طور پر بے دخل نہیں کیا جاتا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ چین میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ صنعتی صوبے زیجیانگ میں ایک دن میں 10 لاکھ سے نئے مریض رپورٹ۔ 13,583 افراد ہسپتال میں داخل۔ لاک ڈاؤن مزید سخت، عالمی قوتوں کا چین سے حقائق سامنے نہ لانے کا شکوہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान जनूबी खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन डेरा इस्माइल खान डिवीजन के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में पुष्पा कमाल दहल पर परचंदा को नेपाल की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाकाई शराकतदारों के तौर पर पाकिस्तान नेपाल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि नेपाल के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के ख़्वाह हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि टैक्स की शरह में इजाफे के लिए अवाम उन्नास की आगाही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कवानीन पर अमल दरामद से ही मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। कराची में टैक्स दहिंदगान की आगाही से मुतालिक सेमिनार से खिताब में सदर ममलकत ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें इंतशार के खात्मे और इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करती हैं, जिसका मकसद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करना सबसे बड़ी बदअनवानी है। करप्शन के खात्मे से ही मईशत में बेहतरी आ सकती है। हमारे मुहतसिबीन की कोशिश ये है कि लोगों तक ये आम फहम कैफियत पहुँचे। FBR के लोगों को भी और जो इदारे हैं जिनके सिलसिले में ये मदद कर रहे हैं उनको भी एहसास हो कि ये मदद कर रहे हैं, ताकि आम आदमी की पहुँच हो जाए। प्रॉब्लम्स बहुत हैं और दिस इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग। एक तरफ आमरीत आ जाती है और एक तरफ एनार्की आ जाती है, तो बीच का जो कॉरिडोर है वो यही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो बैलेंस करती रहती हैं हर चीज़ को, ताकि माशरे के अंदर इंसाफ भी होता रहे, माशरे में अनारकी भी ना हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 544 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,213 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक बाजार में अब तक 6 करोड़ 76 लाख शेयर्स के सौदे 2 अरब 44 करोड़ रुपए में हुए। आज 264 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 210 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 47 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बलूचिस्तान के इलाके कहान में IED के धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 1 अफसर और 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही यसकर, सिपाही मेहरान, सिपाही शमून शामिल हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक शरपसंद अनासर को बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली की कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस गैर रियासती अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहान ऑपरेशन के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि शहदा ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कहान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए वरसा से ताज़ियत की और उनकी बुलंदी दराजात की दुआ की। सदर ममलकत ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक संबाड़ा में किए गए ऑपरेशन में एक दहशत गर्द हलाक हो गया। सरहद पार से भी दहशत गर्दों के सहूलतकारों की जानिब से फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में पाक फौज के सिपाही हक नवाज ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने योब में मादर वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही हक नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया है। शहीद हक नवाज के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए वज़ीर आज़म और सदर ममलकत ने दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम के बहादुर बेटे दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ने 4 साला दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। तफसील यासिर हुसैन से। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क की मैशियत तेजी से तरक्की कर रही थी। इमरान खान ने तरक्की के अमल को रोककर मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनाया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान का ख्वाब वो मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को हासिल किया, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बन के उभरा। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को जो है वो एशियन टाइगर बनाने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता था। इत्तेहादी हुकूमत को मुल्क के मफाद के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। वो 4 साल की हुकूमत फैसलाबाद वालों जिसने लोड शेडिंग फिर शुरू की, दहशतगर्दी फिर मुल्क में शुरू हुई, और इमरान खान नारे लगाते हो, तुमको लाने वाले भी पछताते हैं, तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ के आने से मुल्क में एक मर्तबा फिर खुशहाली आएगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर हवाबाजी और रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मुल्क को दायरे के सफ़र से निकालने के लिए यकसू होकर अमली इक़दामात करने होंगे। उन्होंने कहा कि असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आवाम की नुमाइंदगी और खिदमत के लिए बनती हैं। लाहौर में क्रिसमस, कायद आज़म की यौम विलादत और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत है। सब्ज हिलाली परचम में सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के तौर पर मनाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अमन मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क 75 साल से दोराहे पर खड़ा है और दायरे का सफर जारी है। महज धरने देने और नारे लगाने से काम नहीं होगा। दायरे के सफर से पाकिस्तान को निकालने की जरूरत है। हम एक दूसरे से जंग करके, धींगा मुश्ती करके, एक दूसरे को गंदा करके पाकिस्तान को मंजिल पर नहीं पहुंचा सकते। सो मैं आपको यह कहूंगा कि आप सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन मुस्लिम लीगियों को, मुस्लिम लीग नून के लोगों को मियां नवाज शरीफ की इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि वो एक शाइस्ता इंसान है और वो कभी अपने मुखालिफ का नाम नहीं बिगाड़ते। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान साजिशें करने की बजाय मुल्क को कौम की खिदमत करें। इमरान खान की सारी सियासत झूठ और सिर्फ झूठ के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप धींगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को कौम की खिदमत के लिए कोशां है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नजीर, सैफुल मलूक खोखर, राना मुबशर इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीब से खिताब किया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा गया। इक़्तिदार खो जाने के बाद ये शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता है कि उससे कुछ बास पर्स ना हो और उसकी मंशा तस्लीम करते हुए फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये मुल्क किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड उसको कहते हैं कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसका मुदावा हो और जो बेनिफिशियरी है उसको चेक किया जाए। आज मईशत लूटने वाले, मईशत को बचाने, पाकिस्तान को बचाने वालों को
लुटेरा कह रहे हैं। आज जिन्होंने तबाही की वो हिसाब उनसे पूछ रहे हैं जो बचाने वाले हैं। अगर किसी ने मैशत का, महंगाई का, करप्शन का, गवर्नेंस का मुआवजा करना है तो 2017 से करे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने मोदी हुकूमत की तरफ से भारत और जम्मू कश्मीर में खेली जा रही ज़ात पात, मजहब और नफरत की सियासत की शदीद मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी राबता कमेटी के चेयरमैन हरीश देव सिंह ने जम्मू में एक जलसा आम से खिताब में कहा कि मुआशरे के समझदार अनासर को ऐसी तफरका अंगेज़ कुव्वतों को बेनकाब करने की ज़रूरत है जो हमारी जामे सकाफत के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के लिए वोटरों को ज़ात, रंग और अकीदे की बुनियाद पर तकसीम करने के हालिया रुझानात के इंतहाई खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, लिहाजा इस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने जम्मू खित्ते के ज़िला पुंछ से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तैयब खान नामी नौजवान को ज़िले के इलाके मेंढेर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मेंढेर थाने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAEP के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों में खवातीन पर काम की पाबंदी आयद करने के बाद बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने मुल्क में अपने प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, सेव द चिल्ड्रन, नॉर्वेजन रेफ्यूजी काउंसिल और केयर इंटरनेशनल ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने प्रोग्राम मुअत्तल कर रहे हैं क्योंकि वो इंतज़ामिया के हुक्म पर वजाहत के मुंतज़र थे। सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड राइट ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों को इमदाद के लिए ख़वातीन अमला बहुत अहम है। अगर आपके पास ख़वातीन की सेहत का अमला नहीं है तो आपको उन लोगों तक रसाई हासिल नहीं होगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि ब्लॉक तसादुम की सियासत के बजाय तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बीजिंग में सिम्पोजियम से खिताब करते हुए दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए बड़े मुल्कों को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन ने दुनिया में अमन और तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका चीन के खिलाफ खुली नाकाबंदी, दबाव और इश्तिआल अंगेज़ी में मसरूफ़ है। हमने अमरीका की गलत पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को इस साल के इख्तिताम को यूक्रेन के लिए तारीख और मुश्किल बनाने का इरादा रखता है। हमें किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के रद्द-ए-अमल में कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन के जंग में शामिल तमाम फरीकों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले ने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा मोहलिक यूरोपीय तनाज़े को जन्म दिया है और 1962 क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद से मॉस्को और मगरिब के दरमियान सबसे बड़ा तसादुम है। रूस का कहना था कि वो उस वक्त तक लड़ेगा जब तक उसके तमाम मकासद हासिल नहीं हो जाते, जबकि कीव का कहना है कि वो उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हर रूसी फौजी को उसके तमाम इलाके से बेदखल नहीं किया जाता। रुख करते हैं चीन का, जहां पर कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शंघाई के नज़दीक वाक़ सनती सूबे जियोंग में एक दिन में 10 लाख से ज़ायद नए मरीज सामने आ गए हैं, जिसके बाद लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया जा रहा है, जबकि आलमी कुव्वतें चीन से हक़ाइक़ सामने ना लाने का शिकवा कर रही हैं। चीन ने अब रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले नए मरीजों की तादाद बताने से गुरेज करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब चीनी वजारत सेहत का यह कहना है कि सूबे में 13,583 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें से 242 मरीजों की हालत नाजुक है। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे स्पेन से, जहां एक मुसाफिर बस पुल से बेकाबू होकर दरिया में गिरने से 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक जिंदा बच जाने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून शामिल है, जिनको फायर फाइटर्स ने रस्सी के जरिए दरिया से निकालकर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने दरिया से हादसे में जख्मी और मरने वाले अफराद को निकालने के बाद इंजीनियर्स ने दरियाई लेडीज से बस के मलबे को भी निकाल लिया है।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی سب خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کا۔ امریکہ، کینیڈا اور جاپان میں برفانی طوفان کی شدت برقرار ہے۔ امریکہ میں طوفان کے دوران مختلف حادثات میں اب تک 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 48 امریکی ریاستوں میں خون جما دینے والی سردی سے نظام زندگی منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ اٹلانٹا، شکاگو، ڈینور، ڈیٹرائٹ اور نیو یارک میں کرسمس کے دن ہزاروں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار رہیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان کی وجہ سے امریکہ بھر میں لاکھوں صارفین اب تک بجلی سے بھی محروم ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بفیلو کو برفانی طوفان نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جہاں مختلف حادثات اور گاڑیوں میں پھنس جانے کے باعث مرنے والوں کی تعداد 12 تک جا پہنچی ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ شدید برف باری کے باعث بفیلو کا ہوائی اڈہ بھی کل تک کے لیے پروازوں کے لیے بند ہے، جبکہ بجلی بھی منقطع رہے گی۔ ادھر کینیڈا میں بھی برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ اونٹاریو اور کیوبک میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ بڑے شہروں میں کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور ٹورانٹو اور اوٹاوا کے درمیان ٹرین کی مسافر سروس بھی معطل کر دی گئی۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ نگاتا کے دیہی علاقوں میں 1.5 میٹر تک برف پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہ بلیک آؤٹ ہے۔ بات کریں گے ملکہ کوثر مری کی، اور آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوثر مری میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر سے سیاح سرد موسم کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے پیٹریاٹا میں چیئر لفٹ کیبل کا رخ کر رہے ہیں۔ مری کی انتظامیہ سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کے لیے ہائی الرٹ ہے اور کاروباری حلقے بھی پر امید ہیں۔ اور بلتستان ڈویژن میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ جاری ہے۔ آج دوسرے روز بھی اسکردو شہر میں دن کا کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت -18 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ اس شدت کی سردی کے باعث بلتستان میں کئی مقامات پر دریائے سندھ کا رواں پانی بھی جمنے لگا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں شمال اور مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ منگل کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم اس دوران شمال اور مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خطہ پوٹھار اور کشمیر کے اضلاع میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کوہرا اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لیس کردو -12، کالا مستور گوپس -8، زیارت -7، گلگت -6، کالات -5، چترال اور دیر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے ملنے والے تحائف کی تفصیل شہری کو فراہم نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر کے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ باقی پبلک سرونٹس کو بھی اس میں شامل کیوں نہیں کیا، اپنے آپ کو صدر اور وزیر اعظم تک محدود کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ عدالت نے کہا ہو سکتا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ دستیاب ہو، ریکارڈ ملے تو دے دیں۔ عدالت نے کابینہ ڈویژن سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاک فوج سے متعلق نازیبا ٹویٹس کیس میں گرفتار سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر اسٹیٹ کو 2 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بابر اعوان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اعظم سواتی نے مبینہ ٹویٹس پوسٹ نہیں کی، کسی ادارے کو بدنام کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واضح رہے کہ متنازع ٹویٹس پر FIA نے اعظم سواتی کے خلاف 26 نومبر 2022 کو مقدمہ درج کیا تھا۔
ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने ज़ाती मफाद के खातिर सियासत को गलत रंग दिया। सियासत में गालम गलोच का कल्चर बंद होना चाहिए। वो सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क के अमनो इस्तेहकाम और अवाम की जानो माल के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक शख्स ने मुसलसल झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। किसने गाली गलौज को जो है वो सियासत का सियासत की जबान बनाया, सियासी विक्टिमाइजेशन की आखिरी हदें भी जो है हमारे मुखालफिन ने क्रॉस कर ली। ये कहता था मैं लाखों नौकरियां दूंगा, करोड़ों नौकरियां दूंगा, करोड़ों घर दूंगा, और फिर बाद में कहा मेरे से फलां गलती हुई, मैं रूस गया, मैं भी फलां गलती हुई। गलतियों का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि आजकल सियासी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर जुबान का मुनासिब इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। किसी पर झूठ बहतान से हर सूरत परहेज करना चाहिए। ये हमारी रवायात के भी खिलाफ है। बहुत से हमारे साथी वो इस वक्त सरगर्म है सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसका कंटेंट, जो मवाद वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें एक इज्जत और एहतराम होना चाहिए, चाहे वो सियासी मुखालफ ही क्यों ना हो। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन हम सबको मिलकर अहद करना होगा कि हम इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। हालात बड़े फिक्रमंद करने वाले हालात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हालात से भी निकालेगा। हमें ये तौफीक, हिम्मत और ताकत दे कि हम नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को इस्तेकाम दे सकें। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से पार्टी वर्कर्स के हमरा केक भी काटा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि सोमालिया को तरक्की में ताउन फ़राहम करने के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। सोमालिया के बैनुल वज़ारती वफ़द के एजाज़ में इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा सकाफ़ती शो से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोमालिया को दाखिला उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फ़राहम करेंगे। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वजारत इतलात और नशरियात की जानिब से सोमालिया के 15 रुकनी वजारती वफ्द के एजाज में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सकाफती शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मशीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि दुनिया में तरक्की पसंद कौमें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाती हैं। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, इसने अपने सूबों के साथ कौमियतों के जो इशूज़ हैं, वसाइल की तकसीम के जो फार्मूलाज हैं, ये किस तरह सेटल किए हैं, ये उनका एक लर्निंग ट्रिप था। उनके यहाँ भी अभी ग्रोइंग सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। वो बड़े खुश हैं और आइंदा भी वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहेंगे। उनके काफ़ी वज़रा यहाँ आए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में और महीनों में वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे और हमारे कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी इतलात शाहिरा शाहिद ने कहा कि दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए तजुर्बात का तबादला वक्त की अहम जरूरत है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके यहाँ हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई हैं और जो हमसे सीख सकते हैं, जिनको हम सिखा सकते हैं। सो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। ये आपस के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को जितने भी ज़्यादा मुल्कों के साथ ये ताल्लुकात इस्तवार हों उतना अच्छा है। सोमालिया के वजीर दाखिला अहमद मौल्लम फकी अहमद समेत वफ्द में शामिल दीगर अरकान ने कहा कि एक हफ्ता क्याम के दौरान उन्हें पाकिस्तान में बहुत कुछ सीखने को मिला है। This visit will lead to further contacts between the government of Pakistan and Somalia. When we go back, actually, we will advise the parliament to re-establish the Pakistani-Somali friendship group in the parliament in both houses. The trip has been such an excellent trip. Our purpose of coming here was to learn from Pakistan and the federal system, because in Somalia we're going through the process of coming together as a country and determining what our federal system looks like. Somalia has a federalism that they have adopted, a constitution review that's still in process. So we came here
with the collaboration of UNDP Somalia and UNDP Pakistan. About friendship of the two countries and our mission and our Pakistani counterparts. So it's been really great. See from a fellow brotherly country that's also a federal state, how you guys got past all of your hurdles with the constitutions, with the state building, and it's been amazing. सकाफती शो के दौरान चारों सूबों की लोक धुनें और इलाकाई रक्स पेश किए गए। सोमालिया के वफ्द ने सकाफती शो के शानदार इनेकाद पर दिल खोल कर दाद दी और पाकिस्तान की भरपूर मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान बैनुल-वज़ारती राब्तों के फ़रोग़ से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एबटाबाद में मजहबी रवादारी और हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल देखने में आई जब एक मस्जिद के तलबा और तालिबात ने मसीही बच्चों को क्रिसमस लंच पेश किया। उन्होंने तमाम दिन इकट्ठा गुजार कर मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। एबटाबाद के इलाके झंगी सैयदा में वाक़ मदनी जामे मस्जिद और मदरसा तरतीलुल कुरान के तलबा और तालिबात ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बच्चों को मदऊ किया। उन्हें पुरजोश तरीके से क्रिसमस की मुबारकबाद दी और एक दूसरे को क्रिसमस के तोहफ़े दिए। सब ने इकट्ठा खाना खाया और मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर मारूफ उलमा, चर्च के फादर्स और दूसरी शख्सियात ने भी खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के मौके पर सादा मगर पुरवक्कार तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने सालगिरह का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वतन अजीज पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा, जिसकी हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी जनरल हों, बैनुल-अक़वामी लीडरान हों, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान आए, फंड रेजिंग हुई। न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर फिर इस मामले को टेकअप किया गया। शर्म अल शेख में COP27 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से कामयाबी के साथ मुनक्किद की गई ताकि क्लाइमेट चेंज के वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को कन्विंस किया कि आपकी वजह से हम तकलीफ में हैं और इस तकलीफ के वक्त अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी। और आपने देखा कि COP27 एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुआ और नतीजा अब ये है कि सिंध हुकूमत तमाम सेक्टर्स जहाँ पे लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, परेशानी से दुचार हैं, उनको रिलीफ का सिलसिला जारी हो रहा है। पहली चीज़, तकरीबन 18 लाख घर हालिया बारिशों से मुतासिर हुए। हमारे तकरीबन 24 अजला हैं सूबा सिंध के जो मुतासिर हुए, उसमें 18,80,000 घर हैं जो कि मुतासिर हुए। कुछ कंप्लीटली तबाह हो गए, कुछ पार्शली जिनको नुकसान पहुंचा। पहला काम जो सिंध हुकूमत ने मैनेज किया है वो $1.5 अरब सिंध हुकूमत अपने सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए खर्च करने जा रही है, जिसके तहत उन $1.5 अरब से जो कि सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से, कुछ अपनी फंडिंग से और कुछ फेडरल गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं, हम इनको लुक आफ्टर करेंगे। 18,80,000 घर इंशाल्लाह बना के देंगे। 3 लाख पर घर कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको स्टैगर किया जाएगा कि 3 लाख एक साथ नहीं दे दिए जाएंगे, इसको किस्तों में दिए जाएंगे ताकि लोग वो खर्च करें अपने घर को बनाने में, घर को बेहतर बनाने में, क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल में ये परेशानी ना हो। तमाम उसके ऊपर काम हो चुका और थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराई जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह पेमेंट्स की जाएंगी। उसी तरीके से चूंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं और मैं समझता हूं कि ज़राअत
इस मुल्क के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं, बिकॉज पाकिस्तान की तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौसमियाती तब्दीली का मसला आलमी सतह पर उठाया है। इटली के रिजन मार्के में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से केक भी काटा गया। शुरका ने खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि बानी पाकिस्तान ने आज़ाद वतन के लिए बरसग़ीर के मुसलमानों को बेदार किया। उनकी कोशिशों के नतीजे में अर्ज़ पाक मोर से वजूद में आया। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। उर्दू अदब के माहे मुनीर न्याज़ी को हमसे बिछड़े 16 बरस हो गए। उनकी अदबी खिदमात के बारे में देखिए मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से लबरेज जज्बात के तर्जुमान मुनीर न्याज़ी मुनफरद मिजाज के शायर थे, जिनकी शायरी ने हर दौर में अपना जादू जगाया। वो 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए और साहिवाल को अपना मस्कन बनाया। शेर व सुखन के उफक पर नमूदार हुए तो मुनफरद उसलूब से दुनिया अदब को मुनव्वर कर दिया। मुनीर न्याज़ी ने जिन एहसासात को अपनी शायरी में ढाला, उनका ताल्लुक किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से है। उन्होंने नई फजा, नए लहजे और नए अंदाज से शेरी रिवायत में जिद्दत पैदा की और अपने हम असर शायरों में मुमताज ठहरे। उनकी शायरी लतीफ जज्बात का इजहार है, जिसमें माजी के गुमशुदा मनाजिर और रिश्तों से इनहराफ का कर्ब नुमाया है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो वुसअत के कायल हैं। हम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। गुलजार शायरी में खिले फूलों में मुख्तलिफ रंगो बू की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम वफ़ात है। परवीन शाकिर का कलाम उर्दू शेरी रिवायात में नस्वानी लबो लहजे का नया बाब वाक़िर बताता है। उनके फ़न के हवाले से मज़ीद तफसील मलिक उमर की रिपोर्ट में। इख्तिसार से कहा जाए तो परवीन शाकिर की शायरी का महवर मोहब्बत है, जो कायनात के अंग अंग में सरायत करती महसूस होती है। यही वो जज्बा है जिसके गिर्द परवीन शाकिर की निसाइयत, हिसासियत, इंसानियत, तन्हाई, कुर्ब मलाल, हुस्न रानाई, जज्बातियत वगैरह घूमती नजर आती है। यही जज्बा उनके तमाम मजमूआए कलाम में रचा बसा दिखाई देता है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई।
پروین شاکر اپنے خیال اور فکر کو پوری وضاحت اور دیانت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، چاہے معاملات عشق ہوں یا کاروبار معاشرت و سیاست۔ جب وہ خامہ فرسائی کرتی ہیں تو کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ نہیں چھوڑتی۔ لطافت، شوخی، خیال کا جمال اور احساس کی نازکی بھی نسائیت کی تمام تر حسن و دلکشی کے ساتھ پروین شاکر کے یہاں جلوہ گر ہیں۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے۔ پروین شاکر کے اسلوب کی اثرگیریت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ آج بھی ان سے استفادہ کیے بغیر گزارا نہیں۔ ان کی مقبولیت خاص و عام میں یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کو وقت کے مشہور گلوکاروں نے گا کر امر کر دیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نسوانی جذبوں کا خوبصورتی سے استعمال کرنے والی شاعرہ پروین شاکر کو ہم سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ ان کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے شمائلہ شبیر کی رپورٹ۔ جدید دور کے شعراء کرام میں پروین شاکر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ انہوں نے جب شعر کہنا شروع کیے تو اس وقت ادا جعفری، فہمیدہ ریاض، شبنم شکیل اور کشور ناہید جیسی خاتون شعراء کا نام گونجتا تھا۔ پروین شاکر نے منفرد انداز بیاں اور انفرادی اسلوب کے ذریعے شاعری اور ادب میں الگ پہچان بنائی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی خوشبو کو بکو پھیل گئی۔ شاعری میں رومانوی انداز کے باعث انہیں نئی نسل میں بے حد پذیرائی ملی۔ پروین شاکر کو خوشبو کی اور محبت کی شاعرہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں صرف محبت کے اشعار نہیں ملتے بلکہ اپنے عصر کے مسائل کی جھلک بھی ملتی ہے۔ پروین شاکر نے نسائی جذبوں کا منفرد انداز میں اظہار کیا۔ ان کے کلام میں ایک ماڈرن اور باشعور لڑکی کی سوچ کا اظہار نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں خوشبو، پھول، بہار، موسم، بادباں، سمندر اور اس طرح کے کئی آفاقی استعارے بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی میں بھی ایک کامیاب خاتون ثابت ہوئیں اور اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہیں۔ پرکشش شخصیت اور خوش مزاج ہونے کے باعث وہ اپنے حلقہ احباب میں ہر دل عزیز تھیں۔ ان کی وفات سے اردو ادب جذبات کا رومانوی انداز میں اظہار کرنے والی شاعرہ سے محروم ہو گیا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ٹھٹھا میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہالیجی جھیل میں سرد علاقوں سے آنے والے 1200 اقسام کے خوبصورت پرندوں کی آمد متاثر ہوئی ہے۔ ہر سال مختلف پرندے ہزاروں کی تعداد میں 4 سے 5 ماہ اس جھیل میں قیام کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ سے۔ جی حسن، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہالیجی جھیل ٹھٹھا ضلع کی ایک خوبصورت ترین جھیل ہے۔ اس جھیل میں سیاحوں کے لیے بھی بہت سہولیات رکھی گئی ہیں۔ اس جھیل میں مختلف ممالک سے، خاص طور سے سائبیریا سے 1200 قسم کے پرندے نومبر کے مہینے سے مارچ تک یہاں آ کر قیام کرتے تھے اور ان کو فیڈ اور دوسرا ان کا جو بندوبست تھا یہاں جو ہے مقامی انتظامیہ کرتی تھی۔ لیکن اس دفعہ برسات اور سیلاب کی وجہ سے ان پرندوں کا آمد کا سلسلہ رک گیا ہے۔ سال مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فلڈ ہونے کی وجہ سے ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو گئی، ساری جتنی لیکس ہیں، واٹر باڈیز ہیں، اس کی ہیبیٹیٹ پرندوں کی مطلب ڈسٹرب ہو گئی، جس کی وجہ سے پرندہ اسٹے نہیں کر رہا ہے ادھر۔ اور وہ دوسرا یہ کہ پرندہ ہمارے پاس ڈیوائڈ ہو گیا ہے، فلڈ زیادہ آ گیا، پانی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے پرندہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ جنوری میں مطلب کہ پیک سیزن ہوتا ہے، ہمارے پاس پھر برڈز آتے ہیں، ابھی بھی ہے برڈز آئے ہوئے ہیں، واٹر فال آئے ہوئے ہیں، لیکن کم تعداد ہے۔ اس سال کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برساتیں بہت زیادہ ہوئیں، سیلاب آئے، انہی کی وجہ سے پچھلے علاقوں میں جس طرح اپر سندھ ہے ادھر وہ پانی پانی پانی، ہر جگہ پانی، تو پرندے کافی وہاں پر رہ گئے، کچھ وہاں اسٹے کر گئے پرندے، ان کو کھانا فیڈ وہاں مل رہا ہے تو پرندے وہیں رہ گئے، اسی وجہ سے اب جھیلوں میں کم آئے۔ یہ پرندے مختلف جگہوں پہ رک گئے ہیں، جہاں بھی پانی دیکھا ہے وہاں پہ اتر گئے ہیں، جہاں ان کی نہ صرف نسل کشی کی جا رہی ہے بلکہ ان کو پکڑ کے سستے داموں سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو حالیجی اس دفعہ جو ہے پرندوں کے نہ آنے کی وجہ سے بالکل سونی ہو گئی ہے، اور یہ جھیل جو کبھی پرندوں کی جھیل کہلائی جاتی تھی آج بالکل سنسان ہے۔ جی جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خشک میوے کی افادیت اور استعمال کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عثمان۔
मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात को कुदरत का बेहतरीन तोहफा कहा जाए तो गलत ना होगा। खुश्क मेवाजात नाकाबिले यकीन हद तक ग़िज़ाइयत से भरपूर और ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब हैं। सर्द मौसम की आमद के साथ ही बाजारों में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चलगोजे, किशमिश, इंजीर और दीगर खुश मेवाजात वाफर मिकदार में नजर आते हैं। सर्दी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता, गर्मी में ये चीजें नहीं बिकता। बस आजकल तो मूंगफली और चने ज्यादा चलता है, खजूरें चलता है। शहरियों को जब जाड़े के मौसम में सर्द हवा लगती है तो अपनी तलब और जरूरत के तहत खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख करते हैं। चलगोजा काफी महंगा भी है, चलगोजा हमें पसंद है। यहाँ पे अंजीर ज्यादा पसंद है, अंजीर लेंगे, और मलोक जो काले वाला होता है। महंगाई भी है लेकिन फिर भी ज़रूरियात है, सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है, तो उस हिसाब से ये लाजमी लेना पड़ता है। मुझे इसमें पिस्ता और काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। कुदरती मदाफियत से भरपूर खुश्क मेवाजात को अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत के बायस सुपर फूड का दर्जा भी दिया जाता है। माहिरीन का कहना है खुश्क मेवाजात का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत से मूज़ी अमराज से बचाव में मुआवन साबित होता है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।